کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دینا چاہتا ہوں کہ کانٹوں میں جو کھلتے ہیں شعلوں میں جو پلتے ہیں، کانٹوں میں جو کھلتے ہیں شعلوں میں جو پلتے ہیں، اور وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتے ہیں۔ نہ یہاں گھاس اگتی ہے نہ یہاں پھول کھلتے ہیں، نہ یہاں گھاس اگتی ہے نہ یہاں پھول کھلتے ہیں، مگر یہاں کی سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ اس لیے ادب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ گھڑی خوشیوں کی آئی ہے خوشی کی جاہ دیکھیں گے، گھڑی خوشیوں کی آئی ہے خوشی کی جاہ دیکھیں گے، بسا کر نور آنکھوں میں تمہاری راہ دیکھیں گے، فلک سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، فلک سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، میری بزم خوشی میں آپ جب تشریف لائیں گے۔ عزیزان محترم، سامعین و حاضرین، بزرگان دین، نوجوان دوستو، گاؤں بستی میں رہنے والے نوجوان بزرگ حضرات، سبھی تک میری آواز ضرور پہنچ رہی ہوگی، اور میں امید یہی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو تاریخ اور جو روش آپ کی رہی ہیں اور جو تعریفیں آپ کی سنی ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید قوی بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ان امیدوں پر پورے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے میں آپ سے سفبستہ یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ کو بخوبی معلوم ہے، علماء کرام کی زبانی اشتہارات کے ذریعے سے یا دعوت ناموں کے ذریعے سے آپ تک یقیناً گاؤں کی ہر فرد تک، چھوٹے سے بڑے تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، مرد ہو یا عورت، مذکر ہو یا مؤنث، تمام ہی تک یہ خبر ضرور پہنچ چکی ہوگی کہ آج انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سال ہا سال جس عظیم گھڑی کا آپ شدت سے انتظار کرتے رہتے ہیں، آج الحمدللہ وہ عظیم گھڑی آپ کی اور ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو چکی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے سفبستہ یہی گزارش ہے کہ اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، حقہ بیڑی کو چھوڑ کر، اپنی تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کر، گلی چوراہوں نکڑوں کو چھوڑ کر فوراً آپ حضرات جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئیے، کیونکہ علماء کرام آپ کی سرزمین پر بہت جلد حاضر خدمت ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہاں کسی کا انتظار اگر ہے تو صرف اور صرف آپ حضرات کا انتظار یہاں پر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں ان تمام ہی حضرات سے گزارش کروں گا جو ہمارے مہمانان کرام ہیں، وہ فوراً جا کر کے مدرسے کے اندر پہنچ کر کے جا کر کے کھانے سے فارغ ہو جائیں، اور کھانے سے فارغ ہو کر فوراً جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئے۔ اسی طریقے سے گاؤں بستی کے اندر رہنے والے نوجوانوں بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ فوراً ہی آپ حضرات جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئیے، کیونکہ یہاں پر آپ کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جس گاؤں بستی کے اندر کوئی اجلاس منعقد ہوتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی دینی محفل منعقد کی جاتی ہے، تو یقیناً آپ لوگوں سے بڑی امیدیں لگا کر یہ اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، ان اجلاسوں کو سجایا جاتا ہے، آپ کے لیے اتنا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے ممبران یہ
इसी तरीके से कारी मोहम्मद आसिम बशीरी साहब ने कितना बेहतरीन इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए कर दिया गया है। और छांट छांट करके चुन करके एक से एक उलमा इकराम को आपके लिए यहाँ पर मदऊ किया गया है। यकीनन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर आने वाले एक पैगाम लेकर के आना चाहते हैं और एक पैगाम आपके सीनों के अंदर डालना चाहते हैं। और यकीनन आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए और बार बार आप सुनते भी रहते हैं और ये बात आपके गोशे गुजार होती भी रहती है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये बड़ा फजल व करम है कि आपकी गांव बस्ती के अंदर एक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह दो इदारे चल रहे हैं और दोनों से गांव को बड़ा फैज़ पहुंच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम होना चाहिए कि आप इस बस्ती के अंदर एक नौजवान ने किस तरीके से मेहनतें की हैं और मेहनतें करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर हुफ़ाज़ किराम तैयार हुए हैं आपकी सरजमीन से, वहीं से उलमा किराम भी निकल कर के आ रहे हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आप इजलासों के अंदर जाएंगे, जलसे जुलूस के अंदर देखेंगे, आपके गांव से निकलने वाले, आपकी बस्ती से निकलने वाले बड़े बड़े जलसों को चंद सेकंडों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर अपनी मुट्ठी में समो लेते हैं। क्यों? इस वजह से कि इनके असातिज़े किराम ने इनके ऊपर बड़ी मेहनतें की हैं, इनके असातिज़े किराम ने इनको बहुत अच्छी तरीके से संवारा है। जहां पर कुरान के हाफिज तैयार किए हैं, इसी के साथ साथ जुबान के अंदर वो सलाहियत भी पैदा कर दी है कि बड़े बड़े मजमों को समेट लेते हैं और बड़े बड़े वाक़यात को चंद मिसरों की लड़ी में पिरोकर शायराना अंदाज में पेश करके भी चले जाते हैं। यानी जहां पर हुफ़ाज़ किराम तैयार हुए हैं, इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गांव बस्ती के अंदर चलने वाले मदरसे मकातिब से निकलने वाले हुफ़ाज़ किराम भी हैं, उलमा किराम भी हैं, शुआरा किराम भी हैं। जहां पर खतीब हैं तो उसी के साथ साथ नौजवानों की फहरिस्त में जाने जाएंगे और नौजवानों की फहरिस्त में आपके गांव बस्ती का नाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी जाना जाएगा कि हाँ दुर्वेशपुर की सरजमीन पर एक छोटा सा इदारा चलता था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कई हुफ़ाज़ किराम तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद इलाके में जाकर के काम करते हैं तो पता चलता है कि वाकई उलमा किराम ने, इनके असातिज़े किराम ने किस तरीके से संवार करके निखार करके इनके अंदर वो गुण और वो हुनर पैदा कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी स्टेज पर पहुंचते हैं तो जाने के बाद पता चल जाता है, जाने के बाद महसूस हो जाता है कि हाँ मेरठ की सरजमीन पर एक गांव के अंदर एक छोटा सा इदारा चल रहा है। उस इदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम काम कर रहे हैं, कुर्रा हजरात काम कर रहे हैं, जिनको आप सब जानते हैं, यानी जिनका आप और हम नाम लिया करते हैं कारी मोहम्मद आसिम बशीरी के नाम से, जिनको पुकारा जाता है, जिनका नाम लिया जाता है। मैं बारहा आपसे कह चुका हूँ, आपको इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए इन कमेटी वालों का इंतखाब जो इन लोगों ने उलमा किराम का किया है, उनका इस्तेकबाल करने के लिए और उनके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। गांव को छोड़कर, बस्ती को छोड़कर आपको जलसगाह के अंदर तशरीफ लाना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई इजलास मुनाकिद होता है तो कामयाबी का दारो मदार आपके कंधों पर आकर के टिक जाता है। वरना फिर ये कहा जाएगा कि हाँ न कोई साथ था मेरे, न कोई पास है मेरे, न कोई साथ था मेरे, न कोई पास है मेरे, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो, मेरी जात में मिट्टी, मेरी औकात में मिट्टी, मैं मिट्टी था मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो। बस आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि मुझे तो ये बताया गया है कि दुर्वेशपुर की सरजमीन वालों को जब भी पुकारा गया है, जब भी ललकारा गया है, तो दुर्वेशपुर की सरजमीन वालों ने निकल करके बताया है, उलमा किराम की जुबानों पर निकले हैं, इनकी आवाजों पर मैदानों में निकल करके बता दिया है कि तू पुकारेगा तो ये सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ये सहने हरम आएंगे। अब अबाबिलों के अंदाज में हम आएंगे और लेकर के आएंगे हाथों में सदाकत के आलम। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे और प्यास कहती है कि आओ रेत
रेत निचोड़े हम, प्यास कहती हैं क्या और रेत निचोड़े हम, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, हमको तो अपने काबे की हिफाजत खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। इसलिए मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, सबसे पहले सामने टहलने वाले जो हमारे बच्चे हैं, मदरसा हादा के तलबा व तालिबात हैं, उनसे अदबन गुजारिश यही है कि फौरन जलसागाह के अंदर आकर के तशरीफ रखे। इस तरीके से जलसे का माहौल बिल्कुल खराब न किया जाए, वरना बाहर से आने वाले अवाम यही समझेंगे, बाहर से आने वाले मेहमान उनके दिलो दिमाग के अंदर यही बात आएगी कि अभी तो उलमा इकराम भी यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, और खुद यहाँ पर पढ़ने वाले, मदरसे के अंदर इल्म दीन हासिल करने वाले ये खुद इधर उधर टहल रहे हैं। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक मुहज्जब आदमी से, ये मदरसा हादा के अंदर पढ़ने वाले, इसी तरीके से कारी मोहम्मद आसिम साहब के शागिर्दों में से एक शागिर्द से गुजारिश यही करूंगा कि जाकर के तमाम के तमाम जितने भी बच्चे यहाँ पर टहल रहे हैं, कोई एक मुहज्जब इंसान वहां पहुंचे और इनको पहुंच करके जलसागाह के अंदर ला करके बिठाएं। इस तरीके से अगर यहाँ टहलते रहेंगे तो मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ, बाहर से आने वाले मेहमानों के ऊपर एक ऐसा असर पड़ेगा कि हाँ, एक तहजीब याफ्ता कौम के दरमियान गए थे, तहजीब याफ्ता लोगों के दरमियान गए थे, तहजीब ये देखी कि बाहर रेडियो टेलियो पर खड़े हुए हैं, मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे भी, बाहर से आने वाले मेहमानान इकराम भी ये सारी चीजें नोट करके जाते हैं। उलमा इकराम इन सारी चीजों को आकर के देखते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश यही है कि इनको जलसागाह के अंदर ला करके बिठाया जाए, और इसी तरीके से गाँव वालों से फिर यही गुजारिश है कि तमाम के तमाम हजरात से उम्मीद ये लगा रहा हूँ कि हाँ, मुझे उम्मीद यही है कि तमाम ही हजरात इस वक्त खाने से भी फारिग हो चुके होंगे और दीगर जरूरियात से भी फारिग हो चुके होंगे, और बहुत सारे हजरात वो होंगे जो अभी इंतजार कर रहे होंगे इस चीज का कि उलमा इकराम जलसागाह के अंदर तशरीफ लाएंगे तो हम जाकर के जलसे के अंदर बैठ जाएंगे, उलमा इकराम की बातें सुनेंगे। तो मैं उनसे गुजारिश ये कर देना चाहता हूँ कि आप तहजीब याफ्ता कौम है, तहजीब का तरीका और इसी तरीके से असवार यही है कि आपको जलसे के अंदर पहले पहुंचना है, उलमा इकराम का आपको इस्तेकबाल करना है, ये सारी चीजें आपको मद्देनजर रखनी है, तभी जाकर के आप तहजीब याफ्ता कौम समझे जाएंगे। आप ये समझकर वापस न जाए कि यहाँ बैठने वाले ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हमको क्या सुना सकते हैं। आपसे यही गुजारिश है कि फौरन अपने कामकाज को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपनी तमाम तर जरूरियात को छोड़कर आप हजरात जलसागाह के अंदर तशरीफ ले आए। इसी तरीके से उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जिनके बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, उनके घरों पर यकीनन मेहमानान इकराम तशरीफ लाए होंगे, फौरन उनको खाने से फारिग करके जलसागाह के अंदर उनको ला करके बिठाएं, क्योंकि उनके आने का मकसद यही है, वो इसी वजह से इसी इजलास के अंदर तशरीफ लाए हैं, और इस मजलिस के अंदर सिर्फ एक हाफिज कुरान की वजह से उनको मदऊ किया गया है। इसलिए उसका लिहाज रखते हुए, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको जलसागाह के अंदर तशरीफ लाना है। आपसे बार बार यही गुजारिश की जा रही है और उम्मीद भी यही लगाई जा रही है। आप हजरात को बता देना चाहता हूँ कि आपके इस इजलास के अंदर एक आध नहीं, जहाँ पर एक अजीम हस्ती का मेरठ की सरजमीन से इंतखाब किया गया है, यकीनन आप उसको मुकर्रिर शोले बयां भी कह सकते हैं, खतीब ज़ीशान भी कह सकते हैं, इसी तरीके से आप उसको नकीब हिंद, ये मुकर्रिर शीरी ज़ुबान, मुकर्रिर शोले बयां भी कह सकते हैं, जिसको आप और हम क्या नाम से जानते हैं, मुफ्ती मोहम्मद खालिद समर गार्डन के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ यही आप किसी कुर्बो जवार से नहीं बल्कि सहारनपुर की सरजमीन पर कदम रखिए, वहां पर आपको एक बहुत मुहज्जब इंसान आपको टहलता हुआ नजर आएगा, जिसकी गोद में जाने के लिए और जिसकी आगोश में बैठने के लिए नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी तरसते रहते हैं। दूर दूर से लोग उनकी मजलिसों में आकर के बैठ जाते
जाते हैं, उनसे लोग बैत होने के लिए आया करते हैं। एक बहुत ही अजीम हस्ती सहारनपुर की सरजमीन से आपके इस इजलास के अंदर तशरीफ लाए गए हैं, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी, जिनको आप ये कह सकते हैं मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ साहब के नाम से जिनको जाना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए अजहर हिंद मादर इल्म दारुल उलूम देवबंद की सरजमीन से, देवबंद की सरजमीन से एक बहुत ही अजीम तरीन इल्मी और दीनी शख्सियत रफीकुल उम्मत, और जिनकी आमद के लिए इंसान और आवाम ही नहीं बल्कि उलमा इकराम जिनकी आमद के लिए खुद पर बिछाते हैं, बल्कि एक आध नहीं बल्कि दारुल उलूम का तो नाम भी अगर ले दिया जाए और लोगों के दिमाग के अंदर ये बात डाल दी जाए कि हाँ उलमा इकराम यहीं से इकट्ठे नहीं किए गए हैं, बल्कि दारुल उलूम देवबंद की सरजमीन हो, सहारनपुर की सरजमीन हो, आपके मेरठ की सरजमीन हो, इधर आप बागपत की सरजमीन पर चले जाइए, मुजफ्फरनगर की सरजमीन पर चले जाइए, इन तमाम सरजमीनों से उलमा इकराम का इंतखाब आपके लिए किया गया है। इसलिए आपसे अदबन ये गुजारिश है कि तमाम जरूरियात को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर फौरन आप हजरात जलसगा के अंदर तशरीफ ले आइए, क्योंकि आपको ये बात बता देना चाहता हूँ और आपको ये खुशखबरी भी सुना देना चाहता हूँ कि खुदा को वही लोग पाए हुए हैं, खुदा को वही लोग पाए हुए हैं मोहम्मद से जो दिल लगाए हुए हैं, और हमेशा खुदा उनको आबाद रखे, हमेशा खुदा उनको आबाद रखे जो आका की महफिल में आए हुए हैं। सबसे पहले आप नौजवान बच्चों से गुजारिश करूंगा नीचे बैठ जाएं, आप हजरत जहां खड़े हो वहीं बैठ जाए, तरतीब बातें बना ली जाएगी। आप हजरत जिसको जहां जगह मिल रही है जलसगाह के अंदर आकर के तशरीफ रखिए। बाहर जो नौजवान या बुजुर्ग हजरत पिंडाल से बाहर बैठे हुए हैं उनसे भी अदबन ये गुजारिश है कि फौरन अब तमाम ही हजरात जलसगाह के अंदर तशरीफ ले आइए, क्योंकि अब वो अजीम हस्ती जिनका ये इजलास है, ये इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं जिसने इस इजलास को संवारने के लिए रातों दिन आपके लिए कुर्बान कर दिया है, आप इस स्टेज की जीनत बने हुए हैं। अब ज्यादा वक्त भी मैं नहीं लेना चाहूंगा, अब बस इतनी गुजारिश करना चाहूंगा और इस इजलास की सबसे अहम रुकन और सबसे अजीम हस्ती, और ये कह लीजिए कि सबसे अहम रुकन कि आप तमाम सामाईन का शुरकाए इजलास का पुरजोर इस्तेकबाल और तहे दिल से हम खैर मकदम करते हैं। यकीनन आप हजरात ने हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए जो हजरात यहाँ पर पहुंच गए हैं उनका भी तहे दिल से इस्तेकबाल है, और जो हजरात अभी तक घरों के अंदर बैठे हुए हैं, घरों के अंदर सिर्फ इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि उलमा इकराम स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, तो यकीनन आप हजरात यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर यही गुजारिश करूंगा और आपसे यही कहूंगा कि आज इस ज़ाफ़रान ज़ार माहौल में गुल वलाला उनके माली उनके मुहाफिज़ीन आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और तहे दिल से शुक्र गुजार हैं। यकीनन आपने हमारी बातों की लाज रखी है। अब मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहूंगा, अपने कलाम को बिल्कुल मकसद असली की तरफ मोड़ देना चाहता हूँ और आपके जहन के अंदर बस ये बात डाल देना चाहता हूँ और खुदा से भी ये दुआ करते हुए चलूंगा कि खुदा को वही लोग पाए हुए हैं मोहम्मद से जो दिल लगाए हुए हैं, और हमेशा खुदा उनको आबाद रखे जो आका की महफिल में आए हुए हैं। और कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजरों में गुंबद खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ, हमारे कामों में नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। अब आपसे गुजारिश यही है कि आपका ये प्रोग्राम इंतहाई मुख्तसर होगा। आपको ये बात भी मालूम होना चाहिए कि आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल मुख्तसर होगा, ज्यादा तोल इस प्रोग्राम को नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए कि जिस तरीके से आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल मुख्तसर होगा, आपको अपना मुख्तसर वक्त यहाँ निकाल करके देना पड़ेगा, वरना ये बात तो हकीकत है कि तन्हा इंसान मैदान में खड़ा हुआ कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये शायर भी खुद कह रहा है, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, कि दिल बदल सकते हैं जज्बात बदल सकते हैं,
دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، اور ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ تو یارو ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اب آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئیں، اور جو حضرات تشریف لا چکے ہیں جم کر کے بیٹھنا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام اسی طریقے سے مختصر ہوگا، آپ کو مکمل طریقے سے اس کو سننا ہے۔ اگر آپ ساتھ دیتے ہوئے چلیں گے تو یقیناً اس کا سہرا آپ کے سروں پر باندھا جائے گا۔ اب آئیے حضرات، حسن بسم کی جلوہ سامانیوں، آفتاب کی اشتیاق دید کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، اپنے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کر دینا چاہتا ہوں۔ آئیے حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محفلوں کا آغاز کس چیز سے کیا جاتا ہے۔ میں بھی یہی چاہوں گا جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس کی ہر بات اعجاز خدائی کی شاہکار ہے، جس کی بلاغت اور معنی بھی معجزہ اور تاثیر بھی ایسی معجزہ کہ دلوں کی دنیا بدل ڈالے۔ تو آئیے پھر ایسے ہی انقلاب آفری کلام کو پورے شوق و رغبت کے ساتھ سنتے ہیں، کیونکہ شاعر بھی خود یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن یہ ملا ہمیں رب جہان سے، قرآن یہ ملا ہمیں رب جہان سے، جس کا سرا ملا ہے صفِ آسمان سے۔ اور قرآن کریم کی یہ تلاوت کا فیض ہے کہ خوشبوئی خلد آتی ہے میرے مکان سے۔ آئیے پھر تلاوت کلام اللہ کے لیے مدعو کر رہا ہوں۔ قاری محمد آباد صاحب سے گزارش کروں گا کرسی پر جلوہ فروز ہو کر تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں کہ کوئی صحیفہ رب کا جواب لانا سکا، کوئی صحیفہ رب کا جواب لانا سکا، نظام زیست کا کامل نصاب لانا سکا، اور زمانہ آج تک ایسی کتاب لانا سکا کہ جس کی چوٹ کی باطل بھی تاب لانا سکا۔